Jai Hind, this is Sridip Duti. Today we are going to start a complete new series of physics dedicated to the syllabus of JEE and NEET. Now we are starting this entire course based on the initial nature of physics. To be very specific, the course will be in a bilingual form, that is English mixed with Hindi. So let's start the lecture. Our very first chapter of this entire module is Basic Mathematics, in which we are going to discuss the topics of trigonometry, algebra, and calculus. The vector part of mathematics will be dealt in a next lecture after this chapter ends. So let's start the lecture. The very first lecture of basic mathematics is in front of you. So first of all, the important matter is, what is physics? It is introduction to physics as it is written in the board. What is physics? So basically, if I say according to our legendary H. Verma sir, physics is the study of nature. It means whatever is happening in this world means, if I am taking example of the wind, why the wind is flowing, this is basically the convention, currents, and so on you have learned in geographies. So basically, why the wind is flowing, why the water is flowing from the top of the mountain to the seas, why the rain is falling downwards, and what actual shape of the raindrop is holding in this nature while falling from the cloud or falling from the sky. This entire thing, all this, every one of this, every condition is totally explained, or basically can be explained by the help of physics. So physics, to be very specific, if it is to be written, then physics is the study of nature. Now basically, why we're discussing mathematics in the study of nature? So interesting matter is, according to some legendary philosophers, it is stated that mathematics is the language in which God has created this world. Now this is under the quotations of some legendary philosophers, that basically, if we want to study the nature in this chapter, in this branch of science, that is physics, we are willing to study nature. So if we want to study nature, we will be having certain calculations for which we'll be using some tools, and that tool is mathematics for us. Mathematics is having its own properties. It is a legendary branch of science also, but to be very specific in our perspective, to be very specific in the use of it in the syllabus of JEE and NEET, basically to be very on the physics perspective, is just as a tool, which is the most useful tool whichever we have got basically. So mathematics is the tool used to study physics. Now this tool of this mathematics is so important that we are dedicating our very first lecture on getting the basic terms of this mathematics. Now we are not going to the depth of mathematics in this entire chapter. What we'll be doing is, we'll be just covering the overview which is required for our physics perspective of the entire syllabus of the class 11th and 12th mathematics, and some other topics also. Example, logarithm. To very specific, logarithm is not included in the syllabus of the NCERT syllabus of mathematics in the normal pattern, but we will be requiring logarithm in physics basically, and in chemistry also. So what we are doing is, we are also studying all the required tools, required topics which are required for physics. That is basically, we will be dealing with trigonometry, we will be dealing with algebra, we will be dealing with calculus, and also in this entire thing we will be dealing with some topics such as functions. We will be dealing with some properties of function. We will be doing with some graphs. We will be learning how to plot curves basically, or the graphs of various functions like the trigonometric functions, the logarithmic functions, the exponential functions, and so on. Let's deep dive into the topic. So the very first topic of this first chapter is with basic mathematics is trigonometry. So what is trigonometry? Now trigonometry is, to be very specific, is the geometry of a triangle. Means the measurement, or to say
the branch of mathematics which establishes the relation between the sides and the angles of a triangle is the trigonometry. Now if I want to say side, then we are discussing with length. We know really know what is a length. Now important matter is what is angle. Now we are discussing in a very basic level, so we are starting with a very basic thing. What is angle? So angle is the part of the entire rotation of a circle, or to say the part of a circle covered by a rotating line. Means if I want to say, first of all, if I'm writing the definition of trigonometry, then it is like the relation between the sides and angles of a triangle. Now in this thing, the first subtopic is angle. So what is angle? What is angle? So part of the circle covered by a rotating line, from its initial position. Now what is the meaning of this? So basically, if I want to say that there is a basic line, now this is the end point of this line. It's one end point, it's the other end point. Now if this straight line, consider it to a straight line, this is a schematic, but suppose it is a straight line, then if I am stating that this line is rotating from its initial point, suppose it is an initial point, इस point से ये rotate कर रहा है, तो अगर इस point से rotate कर रहा है, तो rotate करके अगर किसी अलग point पे आ गया, like it is starting from here and it is ending over here, I am drawing another line that is basically an extended line, which is basically the final point. This is the initial point, this is the final point. Now starting from the initial point to the final point, it is basically covering a part of the circle. Means if I start from this point and complete a circle, then the clockwise, this is anti-clockwise manner, basically the entire circle will be covered in this direction. Now if I say that this part of the circle, this small part of the circle from initial and final point is called as the angle. Now in general, you can represent angle with any Greek alphabet, but we have specifically we mention angle with the symbol of theta or phi or alpha, etc. You can use any alphabet. Basically you can also use A, B, C, we know the things, but generally we prefer using this theta, phi and alpha. Most preferable is the theta. Theta is mostly preferred basically. So if I am writing theta at any point, basically get that it is angle. Achha. Now in this topic of angle, we are going to discuss the relationship between the angle and the perimeter of the, or the say the perimeter of the arc covered. So if I say that this is a line from here, the final point is something like this. This is the initial point, this is the final point. मतलब क्या है? मतलब ये रोटेटिंग लाइन जो था ना, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आ चुका है. नाउ इन दिस आई एम टॉकिंग दैट द पार्ट ऑफ द सर्कल, और टू से द पार्ट ऑफ द सर्कल इज थीटा, जिस माई एंगल, वही मेरा एंगल है. तो इस एंगल के साथ अगर मैं बोलूं कि यार ये जो कंप्लीट ट्रैक है, अगर इफ आई ड्रॉ एक्सटेंड दिस from this point to this point, is an arc will be formed. An arc will be formed from the initial point to the final point. This part of the circle, you can draw the circle from here to here, anywhere. And if I say the length of this line is r, अगर the length of the line is length of the line, अगर length है वो r है, अगर तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो पेरीमीटर है, ये जो आर्क का पेरीमीटर है, ये अगर s है,
then the relationship between this all three is established as S equals to R times theta, or to say that the angle theta is equals to the length covered in the perimeter side. They say that the length covered from the initial to the final point is the angular length covered of the perimeter of the circle, of the arc, basically divided by the radius of that of this sector, or to say the length of the line. So this is the relationship between angle theta and the perimeter S. अगर मैं बोलूं कि अभी मैंने क्या डिस्कस किया, we are discussed till that is S equals to R into theta. Now in this relation we can also say that theta is equals to S by R. Now the thing is, if we are to validate this, अगर मैं इस चीज को वेरीफाई करना है या फिर बोलना है कि ठीक है या गलत है, तो कैसे करें? देखिए, एक चीज है कि अगर मैं बोलूं कि भैया एक टोटल सर्कल मैंने अगर ड्रॉ करना है, से ड्रॉ नहीं हुआ तो ठीक है, बट फिर से ट्राई करते हैं सर्कल के ड्रॉ करने का जो यूट्यूब का जो नया ट्रेंड है ना, वो तो ठीक है, देखते हैं. इफ दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, which is the circle of radius r. Now in this circle if I want to say कि भैया ये लाइन है ना, ये रेडियस है, ये अगर स्टार्टिंग किसी पॉइंट से स्टार्ट करके कंप्लीट लूप बना के वापस आए, मतलब यहाँ से शुरू करके ये थोड़ी यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से शुरू करके ये पूरा कंप्लीट लूप बना के फिर से यहाँ पर वापस आए, मींस द लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज रोटेटिंग एंड इट कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, then the total angle कितना covered? The total angle covered is what? So if I say this theta will be what? The total perimeter covered. ये arc है, arc का अगर S है तो यार total का कितना आएगा? We know the total perimeter of a circle is what? Is 2 pi r from basic class 8 mathematics. Class 8 में हमने पढ़ा था भैया कि अगर area of a circle क्या होता है, pi r square होता है, perimeter 2 pi r होता है, 2 pi r है. अच्छा, तो अगर 2 pi r मेरा perimeter है तो मेरा रेडियस कितना है और लेंथ कितना है? r है. कट गया भैया, कितना है कट के? ये आया 2 पाई. अच्छा, मतलब कंप्लीट लूप में फॉर अ कंप्लीट सर्कल और अ कंप्लीट लूप द एंगल इज 2 पाई. ना इंटरेस्टिंग मैटर, ये क्या 2 पाई डिग्रीज में है? नो, नॉट इन डिग्रीज, rather we have another unit for this, which is my SI unit of angle, which is radians. क्या एंगल भैया? वो है radians in radians, and this is my SI unit. ये मेरा SI यूनिट है. अच्छा, तो अगर SI यूनिट है थोड़ा डिटेल्स में बोलिए ना. चलो लेट्स डिस्कस दैट. Radians. So what is radian? So radian is the SI unit of angle. Now in this SI unit of angle is represented by the symbol of C in superscript. मतलब example if I say it is something like this. X is the value, it can be anything, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, pi 2 pi, it can be anything. ऊपर में C, it is in the superscript, it is written as, और एक्सपोनेंशियल ध्यान लिखता है वहां पे लिखते हैं C लिखेंगे, ये रेडियंस का सिंबल है. तो ये क्या की चीज, ये चीज ऐसे हमेशा कैसे करता है? तभी मैंने की बोला कि टोटल रिलेशनशिप यहीं से बनता है कि अगर टोटल लूप का मतलब वी से दैट फॉर अ कंप्लीट लूप अगर मेरा जो एंगल कवर्ड है वो अगर मेरा 2 पाई रेडियन है, एंड वी नो फ्रॉम द बेसिक सेंसेस दैट भैया कि टोटल एंगल है उसका हम डिग्री में बोले तो कितना होता है? इट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. 360, we know that the total angle of a circle is what? 360 degrees. So we can say that
2 pi radian equals to 360 degrees, or we can say that 1 radian is equals to 360 by 2 pi degrees, and it is the most important relationship for calculation. Or you can also say, if I use this, cancel out this and 180, we can also say 1 radian is equals to 180 by pi degrees. You can also say the vice versa thing, that is pi radian is equals to 180 degrees. Now this is one of the most useful relationship to calculate for the conversion of radians to degrees. अगर मैं बोलूँ भैया कि रेडियन चीज क्या है, तो देखो यही चीज है कि एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो कन्वर्शन का डिग्री से तुमको पता है क्या डिग्री कैसे करता है, डिग्री से कन्वर्ट कर लो. और अगर तुम उसे डेफिनेशन वाइज बोलना चाहो तो देखो अगर बोल सकते हैं तो इजीली बोल सकते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई थीटा इज इक्वल्स टू s by r है, और यहाँ पे मैंने बोला कि if I am to define radian, we can say that the angle subtended by an arc where the length of arc is equal to the radius is 1 radian. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन. मतलब देखो अगर इसको मैथमेटिकली मैं समझाने की कोशिश करूं, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. बोला जा रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, so the length of the arc is equal to the radius in 1 radian. So if I say this is the relation, that is theta equals to s by r, in which if I say कि s is equals to जो भी है वो equals to मेरा रेडियस है, बोला जाएगा ना. तो द लेंथ ऑफ द आर्क इट इज s इज इक्वल टू द रेडियस. तो अगर s इक्वल टू r हो गया तो थीटा क्या होगा, 1 होगा ना, एंड इट विल बी इन रेडियंस. इट इज दैट थिंग ओनली. दिस इज द कंडीशन फॉर डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन. रिक्वायर्ड नेसेसरी नहीं है, फिर भी नोट में लग सकता है, यू कैन पुट इट इन योर नोट्स. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइन कन्वेंशन. तो भैया साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल क्या है, देख लो. द साइन कन्वेंशन इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, कोई टफनेस इसमें नहीं है. क्या चीज का ये देखिए, बोला जा रहा है कि अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है एंड दिस इज माय पॉइंट, suppose this is my x axis, or you can take the any axis, or you can say x or y, you can say you can take any axis, this is my axis or any line. From this point the line is rotating, वहां से भैया लाइन रोटेट कर रहा है, this points line रोटेट कर रहा है. तो अगर यहां से रोटेशन दिस डायरेक्शन में होगा, ये क्या डायरेक्शन है भैया, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. इट इज माय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मेरा जो थीटा आएगा, सब्सिक्वेंट एंगल थीटा होगा अल्फा. यू कैन से एनीथिंग, आई एम टेकिंग थीटा. मैंने वैसे बोला कि पहला जो प्रेफरेबल वन है थीटा है. ये क्या है भैया, बाय डिफॉल्ट इन फिजिक्स वी टेक इट एज पॉजिटिव. मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल है, दूसरा कोई नहीं है, मैंने बोल रहा है कि साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल्स. बाद में मेरे पास थर्मोडायनामिक्स वगैरह में आएगा वहां पर, किंतु क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो सकता है, तो अलग चीज है वो. यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, I am talking here exactly and only of angle. So if angle is rotating, if I say the angle is taken in anti-clockwise direction, then it will be positive. And the reverse one means if it is in the clockwise direction, if it is in the clockwise direction, the theta will be negative. इसमें कोई दो मत नहीं है. अच्छा, अगर ये मैंने बोल दिया, वी हैव कवर्ड द रेडियंस टॉपिक एंड हिज द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस. नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लाइक दिस: फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री 15 minutes 30 seconds in radians. Now तुम पहले चीज बोलोगे कि भैया
आपने तो डिग्री तो बोला ठीक है, मिनट और सेकंड तो बोला नहीं, तो पहले डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। तो जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन, कैसे डिस्कशन हो गया, डिस्कशन इज समथिंग लाइक दिस कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इट इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ऊपर का डैश मतलब मिनट्स, लिख भी देता हूं यहां पर मिनट्स, ठीक। एंड जो 1 मिनट है इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश मतलब सेकेंड होता है, ठीक है। ना इंटरेस्टिंग मैटर भैया, यहाँ पर तो मिनट बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, पर डिग्री बोल रहे हो, आवर ही बोल दो, आवर ही बोल दो। यहाँ पर क्या मैंने जो पता है कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, इक्वल टू 60 सेकंड होता है, नहीं, क्यों नहीं बोल सकते। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, इट इज बेसिकली एनसीईआरटी में दिया फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन दिस फिजिकल क्वांटिटीज टॉपिक वी नो दैट आवर इज फॉर टाइम, आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम, वी आर मेजरिंग एंगल, या तो हम एंगल नाप रहे हैं ना भैया, एंगल नाप रहे हैं यहाँ पर हम, तो एंगल में कैसे हम बोल रहे हैं कि आवर आएगा, तो आप मिनट सेकंड क्यों ले रहे हो, हाँ तो मिनट और जो सेकंड है ना, ये दोनों टाइम पे यूज कर सकते हैं हम, मिनट एंड सेकंड। इस केस में हम मिनट और सेकंड मेरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइम पे मिनट और सेकंड मेरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वो टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब 60 मिनट मतलब 360 सेकंड, 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड्स नहीं है, यहाँ पर हम बोला जा रहा है कि हाँ जो सेकंड, जो टाइम का सेकंड नहीं है, ये जो सेकंड है ये एंगल का सेकंड है। मतलब द डिग्री, मिनट और सेकंड, ये जो कॉम्बिनेशन है ना भैया, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, डिग्री, मिनट और सेकंड, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा एंगल का कॉम्बिनेशन है, और आवर, मिनट और सेकंड ये मेरा टाइम का कॉम्बिनेशन है। एंड दिस टू एंगल और टाइम आर टोटली टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये सेम थोड़ी है, एंगल अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, तो कैसे मान ले कि दोनों यूनिट एक होगा, हाँ नाम थोड़ा एक ही यूज हो रहा है यहाँ पर, वो तो क्या करे, बाय डिफॉल्ट साइंटिस्ट ने ले चुका है, साइंटिस्ट ने लिया है, मैंने कुछ मेरा हम लोग का कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ नॉर्मल सेंस कि भैया आवर और डिग्री से तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हाँ अगर कॉम्बिनेशन में आवर मिनट सेकंड है तो हम लोग का वो नॉर्मल टाइम का क्वांटिटी है, डिग्री मिनट सेकंड में आएगा तो वो एंगल क्वांटिटी है। अच्छा, तो यहां से मैं क्या बोला भैया, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट एंड 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो बेसिक कन्वर्शन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूज मत हो जाना एकदम, इट इज वेरी स्पेसिफिक दैट डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, दैट इज एंगल एंड टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो क्या बोला जा रहा है भैया, बोला कि 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड में रेडियन करो। तो भैया देखिए, मुझे मिनट से रेडियन करना नहीं आता, कर सकते नहीं कर सकते, इट विल बी हेक्टिक वेन, सेकंड से रेडियन करना डेली नहीं आता, तो क्या करें, हमें टोटल को, ये टोटल है ना, टोटल ये जो नॉन डिग्री पार्ट है, जो मेरा नॉन डिग्री वाला पार्ट है, इसको मैं अगर कन्वर्ट करके डिग्री में डाल दूं और फिर डिग्री को एक ही साथ रेडियन में बना दूं, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, लेट्स डू द थिंग। चलो ठीक, तो पहले मैं बोलूं कि स्टार्ट करो, ट्राई करना सबसे छोटा वाला यूनिट को पहले कन्वर्ट करने के लिए, वो इजी होता है। तो क्या करें भैया, 30 सेकेंड्स को मतलब यहां से रिवर्स में लाओ, 30 सेकेंड्स को पहले मिनट्स में लाओ, फिर मिनट्स को आवर डिग्री में लाओ, कि वो इसलिए इजी होता है, ठीक। तो मतलब मैं क्या बोलूं कि 30 सेकेंड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसको अगर करना चाह रहे मिनट में, इट विल बी 30 डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, बैक में आएगा तो डिविजन ही होगा ना, तो कॉमन सेंस है, कितना होगा भैया, ये मेरा हो गया हाफ मिनट। अच्छा, अब देखो तो कितना मिनट हो गया मेरा, 15 प्लस हाफ, ये मेरा मिनट हो गया, इसको मुझे करना है डिग्री में, तो क्या होगा भैया 15.5 बाई 60, जो भी आएगा वैल्यू, जो भी आएगा ये मेरा डिग्री में आएगा। अच्छा, तो ये मेरा डिग्री आ चुका है, मेरे पास ओरिजिनल डिग्री भी था, मतलब 45 डिग्रीज प्लस 15.5 बाई 60 डिग्रीज, ये टोटल को मुझे करना है इन रेडियंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना आएगा, तो लेट्स सॉल्व कर देते हैं, कितना होगा ये, देखो सॉल्व करके देखो कितना आता है, फिर हम देखता हूँ तो कैलकुलेट। तो ये मेरा पूरा जो है, ये इस टोटल थिंग इज कमिंग एज 45.258, इतना डिग्रीज में आ रहा है।
तो इसका अगर करना चाहे हम रेडियंस में तो कैसे करेंगे भैया, इसको अगर करना है रेडियंस में क्या करेंगे, तो वी नो दैट 1 रेडियन, और टू से ना हटाओ, झगड़ा मत करो, डायरेक्ट करो कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सो 1 डिग्री विल बी पाई बाई 180, जस्ट कर दो यहाँ पर। तो इतना रेडियन कितना आएगा, ये आएगा बेसिक यूनिटरी मेथड 45.258 डिग्रीज will be equal to 45.258 into pi by 180 radians. So just solve कर लो, इसका आंसर आ जाएगा, this will come up to 0.789 radians. This is the answer. The next topic is trigonometric ratios. भैया पढ़ चुके हैं हम क्लास 8 में, फिर भी थोड़ा सा 8 नहीं में नहीं 10 में, एनसीईआरटी में 10 में है, आईसीएसई में 9 में है, लेकिन फिर भी चलो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिविजन करना इट्स अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फिजिक्स ब्रांच। हाँ भैया रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिविजन नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। तो बस टॉपिक क्या है भैया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, तो रेशियोज मतलब स्टार्टिंग में हम बोले तो वी हैव बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या रेशियो भैया पढ़ चुके हम, क्या बोलिए, साइन कॉस टैन सेक कोसेक और कॉट, 6 है मेरे पास। यानी बनाता क्या, यानी ऑल दिस रेशियोज आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल से ही सब कुछ डिराइव किया हुआ है। नाउ इट कैन बी अ स्केलिन ट्रायंगल, इट कैन बी नॉर्मली अ इक्विलैटरल, तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ भी करके तो बना सकते हो, लेकिन मीन्स एवरीवेयर यू कैन यूज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा तो भैया क्या रेशियोज है, तो 6 रेशियोज में क्या है, फर्स्ट इज साइन, SINE होता है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको SINE लिख देते हैं, ठीक है, साइन। फिर है हमारा कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखते हैं इसको हम। फिर है मेरा टेंजेंट, उसको हम टैन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, साइन कोसाइन टेंजेंट, टैन हो गया मेरा, ठीक। इसका उल्टा आएगा मेरे पास, क्या क्या आएगा भैया, साइन का उल्टा आएगा मेरे पास कोसेक, कॉस का उल्टा आएगा मेरे पास सेक, तो मेरा सेकेंड है, सेकेंड, ठीक है, उसका सेक आएगा। और टेंजेंट मतलब टैन का उल्टा क्या आएगा, कॉट। अच्छा साइन कॉस टैन, तो कोसेक से कॉट तो हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब रेशियो का इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो इफ आई एम टेकिंग एनी राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पर ड्रॉ किया, सपोज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक था, हुआ तो नहीं, लेकिन फिर से तो ट्राई करते हैं। हाँ लगभग हो चुका है। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज माय बेस साइड, दिस इज माय हाइट और परपेंडिकुलर साइड, एंड दिस इज द hypotenuse, and suppose this is my angle theta, this is my right angle, and this angle is not equal to this is my theta. Now if I say that sine of this theta, cosine of this theta, tangent of this theta, cosec of this theta, sec of this theta and cot of this theta, इसका वैल्यू क्या क्या आएगा। यहाँ पर हाइट को थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं बनेगा, थोड़ा सा साइड में गंडगोल हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर इतना हाइट, चलो हाइट, ठीक। तो क्या क्या आएगा भैया, तो देखो, तो याद करने का एक बेसिक ट्रिक है कि सम पीपल हैव, मतलब सम इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट और परपेंडिकुलर एनीथिंग, हाइट और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। बचपन में पढ़ा क्या राइम है, बेसिकली सर ने सिखाया था मेरा। तो क्या इस टाइप है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर साइड
perpendicular side by the hypotenuse. Means the ratio, मैंने क्या बोला पहले, what is trigonometry? It is the branch of mathematics which establishes a relationship between the sides and the angle. Side and angle मतलब क्या है? Sin theta क्या है? Sin theta is a ratio between the perpendicular side and the hypotenuse. Cos है क्या है? Cos भैया cos theta क्या है? Base और hypotenuse ratio, ratio between the base and the hypotenuse. Tan theta क्या है? Perpendicular और base का ratio. अच्छा, कोसेक से क्या कॉट क्या होगा? ठीक इसका ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट. मींस कोसेक क्या होगा? इट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा. सेक क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉट क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा. मतलब क्या है? मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा मतलब है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दैट्स इट. और कुछ नहीं. मैंने पढ़ा है, हम लोग वी हैव ऑलरेडी डेल्ट दिस इन क्लास 9th and 10th. मैंने फिर भी रिवीजन करने थोड़ा सा ट्रिक है. राइम करने क्या बोला? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक. कोई ब्राउन नहीं बोलता, लेकिन चलो हटाओ, कोई बात नहीं है. अच्छा, नाउ दिस इज द बेसिक सेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ना. एक इंटरेस्टिंग बात है. क्या इंटरेस्टिंग बात है भैया? कि मेरे पास एक अलग किस्म का ट्रायंगल है जिसको हम स्पेशल ट्रायंगल बोलते हैं. चलो देखो, लेट्स ट्राई टू draw a triangle, right angle triangle. Now in this right angle triangle, if this is my perpendicular side, this is my hypotenuse side, and this is my base side. Now this angle is theta. Now interesting matter क्या भैया? अगर मैं बोलूं, इंग्लिश है कि the angle opposite to the smaller side will be small. मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो वैल्यूज है, दिस इज 3, दिस इज 4, देन दिस विल बी 5 बाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दिस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर लेंगे तो 5 ही आएगा. वी नो दिस थिंग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5. द इंटरेस्टिंग मैटर, जो थीटा आएगा 3 का ऑपोजिट में, if the angle opposite to 3 is theta and the angle opposite to the larger side, that is 4, is supposingly it is 5. दो एंगल लिया मैंने, one angle is theta, other one is phi. The angle opposite to the smaller side लिखे दिख मैं, I am writing it down, that is angle opposite to the smaller side will be small and vice versa. मतलब क्या है? देखो ये सबसे बड़ा यहाँ पर साइड कौन सा है? 3 4 5 के ट्रायंगल में सबसे बड़ा कौन है? 5 है. तो 5 का ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है. नहीं, एक ट्रायंगल इन दिस वन ट्रायंगल, द टोटल सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्रीज. ना इन दिस 180 डिग्रीज, इफ वन इज 90, this two must be less than 90. It will be a very common sense. ये अगर 89 भी है ना, फिर भी ये 1 डिग्री होगा. मींस बेसिकली दिस टोटल विल सम ऑफ 90 बट नॉट बी इक्वल टू, नीदर थीटा और 5 विल बी इक्वल टू 90. बेसिक मैथमेटिक्स है. इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है भैया? 5 का ऑपोजिट में लार्जेस्ट एंगल है. 5 का ऑपोजिट में लार्जेस्ट एंगल इट इज 90 डिग्रीज. इट इज 90 डिग्रीज. 5 का ऑपोजिट लार्जेस्ट एंगल है, 5 लार्जेस्ट है, उसमें लार्जेस्ट एंगल है. तो भैया 3 जो स्मॉलेस्ट है, इसका ऑपोजिट में थीटा स्मॉलेस्ट आएगा, और 4 का ऑपोजिट में 5 आएगा, वो इन दोनों के बीच में आएगा. मींस बेसिकली इफ आई हैव टू से दैट दिस 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट वन. इससे छोटा होगा मेरा 5, उससे छोटा होगा थीटा. दिस इज द ऑर्डर. अच्छा, तो भैया इसका कोई वैल्यू भी है क्या? हाँ, तो छोटा वैल्यू है भैया. ये थीटा है ना, थीटा, दिस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 37 डिग्रीज एंड दिस 5 is equals to 53 degrees. वैल्यू को तुम डेसिमल में बोल सकते हो, 36.54 ऐसा कुछ आता है, और ये भी 52.7 ऐसा कुछ आता है, लेकिन हम लोग सुनना झमेला जाते नहीं है. हम नॉर्मल केस में लेते हैं कि 37 डिग्री 53 डिग्री राउंड ऑफ नंबर. अच्छा, तो 37 53 तो बोला, तो ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर आवर स्टडीज, सो वी कॉल इट एज स्पेशल ट्रायंगल. क्या कहते हैं भैया इसको? स्पेशल ट्रायंगल. ये स्पेशल ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 4 5 साइड वाला जो ट्रायंगल है, द ट्रायंगल with the sides of perpendicular as 3, this base as 4, and hypotenuse as 5 units. It can be any unit. It's meter, centimeter, decimeter, millimeter, it doesn't matter. It can be any unit.
In this 3, 4, 5 configuration triangle, right angle triangle, the angle opposite to 3 will be my 37-degree angle, and the angle opposite to this 4 will be my 53-degree angle. Now based on this configuration, we get some special values of sine theta and cos theta, which we do have to remember, because every time you cannot draw the triangle, you can use it, but basically it is preferable to remember the values for sine theta and cos theta exactly for this special triangle. So let's note it down, take a screenshot of it, and then writing this down. Now this is my special triangle. In this special triangle, देखिए भैया कि sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा, sin थीटा दिस इज 37 डिग्री, मतलब sin 37 कितना आता है, sin थीटा is basically what, perpendicular by hypotenuse. Now for this angle, this is my perpendicular and this is my hypotenuse. ये तुमका you should do determine, you should be able to distinguish the perpendicular and the base. hypotenuse मेरा constant है, किस एंगल की, मतलब if I want to take this angle, and for this angle, this is the perpendicular, this is the base. Now for this angle 53 degree कौन होगा, this for this angle, the this side 3 will be my base and this will be my perpendicular. क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो इस ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन में देखो ये बेस एंगल है, यही मेरा थीटा है, यही थीटा है, तो थीटा का ऑपोजिट में क्या परपेंडिकुलर आता है और अलॉन्ग देखते हैं बेस आता है। और यहाँ पे देखो अगर इसको हम ऐसे रिवर्स करके देखें तो भैया ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, तब ये मेरा 53 डिग्री होगा, ये मेरा 37 डिग्री होगा और ये मेरा 90 डिग्री होगा एज यूजुअल, और टाइम ये मेरा 3 आएगा, ये मेरा 4 आएगा, मेरा 5 आएगा। हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है हर टाइम पे, लेकिन ये ट्रायंगल में ऐसा रिवर्स करके देखें इसको, इफ आई रिवर्स इट लाइक दिस, इफ आई रोटेट इट, द रिवर्स रोटेट होगा, इफ आई रोटेट दिस triangle like this, then the 3 1 will be my base and 4 will be my perpendicular. So you should be able to distinguish properly the perpendicular and the base of a triangle, right angle triangle, because the hypotenuse is always constant for different angles. So sin 37 कितना आएगा भैया, this perpendicular upon hypotenuse, that is my 3/5. अच्छा cos 37 कितना आएगा, कितना आता है, it is basically what, it is basically base upon hypotenuse, मतलब 4/5. अच्छा और tan 37 कितना आएगा, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 3/4. यू कैन ऑल्सो टेक द अदर कॉन्फ़िगरेशन, भैया साइन को उल्टा कर दो, कोसाइन आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा, tan का उल्टा कॉट आ जाएगा, तो ठीक है। अच्छा इसमें क्या है भैया, देखो यहाँ पर साइन 53 डिग्रीज, साइन 53 डिग्रीज जूली व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो भैया ये मेरा परपेंडिकुलर, मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा 4/5 हो गया। कॉस 53 डिग्री, ये कितना आएगा 3/5, और tan, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन 4/3, ठीक, परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। दिस इज द कन्फिगरेशन ऑफ स्पेशल ट्रायंगल्स एंड सम स्पेशल वैल्यूज। नाउ वी आर डिस्कसिंग द आइडेंटिटीज, पढ़ चुके हम लोग जूनियर क्लासेस में, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसको तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। चलो, in some important identities, the very first identity is what, the very first identity is number 1 is sin square theta plus cos square theta equals to 1। बचपन से पढ़ चुके हम, यही है मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी। ना इस आइडेंटिटी में अगर मैं बोलूं कि डिवाइड इसको बोल देते हम इक्वेशन नंबर 1, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय sin square theta ऑन बोथ साइड, 20 मतलब बोथ साइड, क्या है भैया, क्या मिलेगा मुझे, sin square theta by sin square theta is what, it is 1, cos square theta by sin square theta it is what, it is cot square theta, and 1 by sin square theta is what, it is basically एक 1 by sin theta होता है मेरा cosine theta, मतलब cos बेसिकली हाँ cosine theta, cosec theta, 1 by sin theta is cosec theta, 1 by sin theta मेरा cosec theta होता है, तो 1 by sin square theta कितना आएगा, 1 by sin square theta मतलब cosec square theta। This is my equation number 2, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन था क्या, sin square theta plus cos square theta equals to 1, then we got dividing by equation number 1 by sin square theta, we get 1 plus cot square theta equals to cosec square theta, और फिर से this is my equation number 2 basically, and again divide equation number 1 by
cos square theta on both side, what we get is sin square theta by cos square theta is tan square theta. Cos square theta by cos square theta is 1 is equals to 1 by cos square theta, which is basically sec square theta. This is my third equation. So first equation is sin square theta plus cos square theta equals to 1. Second one is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. Third one is 1 plus tan square theta equals to sec square theta, and this is the basic thing, three equations of class 10 NCERT and class 9 ICSE. Chalo. So the next is basically the values of acute angles of trigonometric functions. ये कौन सा वैल्यू मतलब? Acute angle मतलब क्या है? 0 to 90 degree. From 0 to 90 means if I say sin 0, sin 30, sin 45 and sin 60 and sin 90 basically, and the rest is cos 0 and so on and tan for this. अच्छा, तो ये इसके जो बेसिक यू कैन रिमेम्बर द वैल्यूज क्लास 9 10 से पढ़ चुके तुम लोग, फिर भी एक थोड़ा सा इजी वे में बोलूं तो यार साइन थीटा का वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला भैया? तो फॉर्मूला इज लाइक दिस, रूट ओवर x बाई 2. क्या बोला भैया मैंने? रूट ओवर x बाई 2 वेयर x is basically equal to 0 1 2 and so on. मतलब x starts from 0 and continues, means basically for sin 0 degree the value of x will be 0. तो भैया क्या 0 पुट करें, यहाँ पर क्या आएगा? 0 बाई 2 मीन्स 0, मीन्स साइन 0 का वैल्यू कितना आएगा? ये होगा 0 डिग्रीज. साइन 0 का वैल्यू आएगा 0. अच्छा, साइन 30 मतलब नेक्स्ट इज 1, तो रूट ओवर 1 बाई 2 मतलब क्या है? 1 बाई 2. देन फॉर 45 इट विल बी द नेक्स्ट वन इज 2, तो रूट 2 बाई 2 इज व्हाट? 1 बाई रूट 2. देन नेक्स्ट इज 3, तो रूट 3 बाई 2. नेक्स्ट विल बी 4, तो रूट 4 इज 2, तो 2 बाई 2 इज 1. दिस इज द रूल. अगर तुम नॉर्मली याद कर सकते हो तो याद कर लो ना, बचपन से पढ़ चुके तुम लोग. फिर भी रूल वाइज कि रूट अंडर एक्स बाई 2 होता है. स्टार्टिंग में अगर लेंगे 0 के लिए मैं 0 लूंगा, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 एंड सो ऑन, 90 के लिए इट विल टिल 90. उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इट इज ओनली फॉर एक्यूट एंगल्स. तो cos का क्या होगा भैया? तो वी नो अ बेसिक सेंस दैट इज sin theta and cos is a relation between them. It is for acute angle cos 90 minus theta, sorry, cos theta is equal to sin 90 minus theta, cos 0 is equal to sin 90 minus theta. मतलब इसको उल्टा करके रख दो यहाँ पर यार, और कुछ नहीं. मतलब 90 में जो आएगा वो 0 में आएगा यहाँ पर. 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 एंड 0. दैट्स इट. tan क्या है भैया? sin by cos. what is tan? tan is sin theta by cos theta. just divide it. तो 0 by 1 क्या आएगा भैया? 0 आएगा. 0 by 1 is 0. 1 by 2 by root 3 by 2 it is 1 by root 3. 45 में 1 by root 2 by 1 by root 2 मतलब 1, और इसमें देखो root 3 by 2 by 1 by 2 मतलब root 3 आएगा, और 1 by 0 मतलब ये नॉट डिफाइंड होता है. हम लोग फिजिक्स में इनफिनिट लिखते हैं. इन फिजिक्स वी राइट इट एज इनफिनिटी और कैन आल्सो राइट इट एज नॉट डिफाइंड. ठीक. अच्छा, दिस इज द बेसिक वन फॉर एक्यूट एंगल्स. अगर एक्यूट से ज्यादा बोले तो भैया वैल्यू जो रिक्वायर्ड होता है वो यहीं से होता है. यहीं से हम इसको, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन. जो बिग करेंगे कैलकुलेशन 540 डिग्रीज, 270 degrees, and we know it can be anything, 1 to 10 degrees, it can be anything. So for all those values we will be requiring just from this 15 values you can get any value of angle, because in the examination we will not be allowed for calculations, we will not be allowed calculators, do it by your own self. and easy होता है, बहुत easy चीज है वो, फ्यूचर में तुम्हें बहुत काम भी आएगा. बेसिकली क्या काम आएगा भैया? ये 15 वैल्यूज में से 15 वैल्यू को यूज करके बेसिकली हम कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं. So पढ़ेंगे future, we will doing this with them in future, but just for this take a screenshot of this. Now the next topic is basically the 4 quadrant system. The 4 quadrant and the signs over there. Signs means the positive and negative values. So basically if you are taking the 2-dimensional Cartesian system, then we have 4 quadrants. I got it in mathematics, we know this. The first value that is starting from 0 degrees to 90 degrees, or to say pi by 2 radians is my first quadrant. Now from pi by 2 to 180 degrees or pi radian is my second quadrant. From pi radians
or 180 degrees to 270 degrees or 3 pi by 2 radians is my third quadrant, and from 3 pi by 2 to 2 pi or 270 degrees to 360 degrees is my fourth quadrant. Now why I am discussing this quadrant system? The reason for this is, if the angle is lying between this 0 degrees or 0 radian to pi by 2 or 90 degrees in the first quadrant, then all the functions, all the trigonometric functions, that is basically the sine, cos, tan and cosec, sec, cot, all are positive in the first quadrant. So we say that all values are positive in first quadrant. Now when we are discussing the second quadrant, then here only the sine and its reciprocal, that is cosec, are positive. Now in the third quadrant we have tan and its reciprocal, that is cot, as positive. In the fourth quadrant we have cos and its opposite or reciprocal, that is sec, as positive. Now why this distinction? So basically it is the experimental values from the mathematical graphs or the trigonometric functions of every individual function, that if the value is lying between in 0 degrees to pi by 2, that is 0 to 90, then the values of the trigonometric function is generally positive. It's always positive basically in the acute angles. Now for obtuse angle we have 90 to 180. In this range the sine and cosec are positive. From pi to 3 pi by 2, that is 180 degrees to 270 degrees, only tan and cot is positive, and from 270 to 360 in this range only cos and sec are positive. Now why we are doing this? So basically there's a trick to remember this value. We say it as all sine, tan, cos. You can remember it like this, or we use our rhythmic rhyme, that is basically add sugar to coffee. You can use either of them. Add sugar, but when I saying that all means first quadrant all are positive, sine second quadrant sine and reciprocal, that is cosec is positive, and tan in third quadrant we have tan and its reciprocal, that is cot, and in fourth quadrant we have cos and its reciprocal, that is sec is positive. You can also say add means basically it is representing all. Sugar is the first letter of sugar is S, represents sine. 2, this 2 is T is representing tan, and the C is representing cos, and its reciprocals for sure. You can remember it like this also, there is no issues. Now this system is not only for 0 to 360, means not for a complete loop. It can be used for multiple loops also. Means suppose I am having a line starting from 0 to this point and it is completing a complete loop. एक पूरा लूप इसने खत्म कर लिया आके, और फिर यहां से यहां तक वो आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल एंगल कितना कवर हुआ, तो इट विल बेसिकली 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 दैट इज 450 डिग्रीज. तो यह मतलब क्या है, मतलब दिस कैन गो टिल इन्फिनिटी. है, इट कैन गो टिल इन्फिनिटी, इट कैन गो टिल इन्फिनिटी. ये रुकेगा नहीं किसी पे. तुम किसी भी एंगल निकालो, कोई भी एंगल का वैल्यू निकालो, इस कंप्लीट लूप से तुम निकाल सकते हो. ओरिजिन से लेकर जस्ट लाइन देखना कहां पर रुक रहा है, जहां पर रुक रहा है द लाइन, जहां पर भी लाइन रुक रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वही सेम चीज हमें फॉलो होगा. तो अच्छा, तो ये इसका कुछ रूल वगैरह कुछ है. हाँ, साइन का रूल तो भैया बोल दिया मैंने, लेकिन इसके साथ में एक कंप्लीमेंट्री रूल भी है. मतलब क्या है, देखते बोलते हैं कंप्लीमेंट्री रूल. कंप्लीमेंट्री रूल वो क्या भैया, देखो चीज क्या है. ये चीज है कि भैया अगर मैं बोलूं द एंगल, इफ द एंगल कैन बी रिटन एज लाइक दिस 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा. मतलब कोई भी एंगल हो, सपोज आई एम टेलिंग 110 डिग्री, मतलब क्या 120 डिग्री, 120 डिग्रीज, इट कैन बी रिटन एज 90 इंटू 1 प्लस माइनस और प्लस बेसिकली 30 डिग्रीज 120. So this format, you have to write any angle in this format, you have to fit any angle in this format, and after fitting in this format, if this n is odd,
then the function changes. And if this n is even, then it remains constant. मतलब what is the meaning of this? So basically if I say that sine 90 plus theta, 90 means 90 into 1, here n is 1, here observe, here n is 1, n कितना भैया, n 1 है, देखो n 1 है, 90 into 1 is 90, n 1 है, means 1 is odd number, yes n is 1 odd number, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा. तो किसमें चेंज होगा, चेंज किसमें होगा, तो उसका रूल है भैया, उसका चेंज का रूल है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, वो बेसिकली ये कहता है कि जो साइन है वो मेरा कॉस में कन्वर्ट होगा एंड वाइस वर्सा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा. अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो भैया कॉस हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा है वो साइन हो जाएगा. अच्छा तो भैया मेरा जो tan क्या होगा, tan मेरा कॉट हो जाएगा और सेक मेरा कोसेक हो जाएगा. मींस साइन कॉस, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट tan, सेक कोसेक, कोसेक सेक. दिस इज द रिवर्सल कॉम्प्लीमेंट्री रूल, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री रूल. अच्छा तो अगर n 1 हो जाएगा, मींस इफ आई टेक एन एग्जांपल कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, साइन 120 कितना होगा, तो कैसे निकाला भैया, इसको लिख दो ऐसा करके, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, नो इशूज, देखो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा देखिए 1 ऑड नंबर है, मतलब साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा. कॉस 90 अब नहीं लिखेंगे भैया, हम ऑपोजिट कर चुके हैं इसको, तो क्या लिखेंगे इसको हम, कॉस 30 के बराबर हो जाएगा ये चीज. मतलब साइन 90 प्लस थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो कॉस 30, कॉस थीटा कितना होता है भैया, कॉस 30 होता है हमारा √3/2 हो गया आंसर. अच्छा अब देखो दिक्कत क्या है भैया, ये दिक्कत नहीं है यहाँ पर. देखो ये जो साइन 120 है कहां पर लाई कर रहा है, तो यहां से शॉर्ट करते हम, ये आ रहा है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट पे. तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, मैंने प्लस √3/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर. अच्छा लेकिन अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 120 तो क्या जाएगा, cos 120 अगर मैंने बोल दूं ना cos 120, तो रूल तो एक ही टाइप लगाओ. क्या रूल है कि ये मेरा क्या होगा, ये होगा cos 90 प्लस 30, कोई दिक्कत नहीं है भैया. अच्छा ये ऑपोजिट भी होगा, cos मतलब साइन हो जाएगा, ये साइन 30. लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर है कि ये जो 120 है ना, cos 120 लग रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और cos पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन तो ये तो मेरा cos है, ये तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा, लेकिन एंगल मेरा 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे. फिर से बोल रहा हूँ, एंगल मेरा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में कंपैटिबल फंक्शन साइन और कोसेक है, cos नहीं है. तो अगर cos नहीं है भैया तो उसका जो कंप्लीमेंट्री सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन 30. साइन 30 कितना 1/2, आंसर विल बी -1/2. दिस इज द रूल. तो ये एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चंस, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 135 डिग्रीज, tan 135. तो कैसे निकालें इसको, तो देखो इजी है, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट स्टेप इज try to write this angle, this is my domain, in the 90n plus theta rule. क्या बोला भैया, 90n प्लस माइनस थीटा रूल में लिखने का ट्राई करो. अच्छा तो भैया इसको हम अगर tan बोले तो 135 में देखो, अगर बोले इसको हम, कैन आई राइट इट एज 90 प्लस 45, कोई दिक्कत होनी चाहिए. अच्छा तो भैया tan 90 बोलना है, 1 प्लस 45 मींस बेसिकली इट इज लाइंग इन 135 मींस इट इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या है, पॉजिटिव होगा, नहीं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा. ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया, नेगेटिव होगा. देखो n क्या है, 1 है, यहाँ पर n कितना आ रहा है, यहाँ पर n है मेरा 1 आ रहा है, तो n 1 क्या है, बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स. तो अगर ये ऑड नंबर है तो क्या होगा, दे विल बी चेंज लगा दो भैया. तो चेंज tan का क्या होता है, tan का कंप्लीमेंट्री क्या है, कॉट है, मतलब ये हो जाएगा माइनस
cot 45। अच्छा भैया cot 45 का वैल्यू कितना होता है? cot 45 वैल्यू कितना होता है? cot 45 का वैल्यू कितना होता है? बोलो कितना होता है cot 45 का वैल्यू? देखो tan 45 कितना होता है? tan 45 मेरा 1 होता है, तो 1 बाई tan 45 क्या होगा? ये मेरा cot 45 है, कितना होता है? भी 1 ही आएगा ना, लेकिन अगर माइनस है ना तो मतलब -1, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 210। cot 210 का वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे? देखिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सिंपल चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रूल है भैया, इसको हम पुट करेंगे 90m प्लस थीटा रूल में। अच्छा तो उसका हम बोलेंगे 90m प्लस थीटा। अच्छा भैया इसको हम 180 प्लस 30 बोल सकते हैं। देखो तो ऑब्जर्व करके, कैन आई राइट इट एज 180 प्लस 30? कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है भैया, 180 प्लस 30 1 होता है। अच्छा देखो 180 क्या है? व्हाट इज 180? इट इज 90 इंटू 2 प्लस 30। वही तो है ना, 90 इंटू 2 प्लस 30 ना। हियर 2 इज इवन नंबर, 2 क्या है? इवन है, मतलब देयर विल बी नो चेंज, मतलब नो चेंज, कोई कॉम्प्लीमेंट्री चेंजेस नहीं, मतलब ये कॉट ही रहेगा। लेकिन साइन चेक कर लो, साइन चेक कर लो भैया। 210 कहां पर बढ़ रहा है? 0, 90, 180, 270, मतलब इज इन बिटवीन 180 एंड 270। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होगा भैया, cot ही है मतलब पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये हो जाएगा cot 30। कितना वैल्यू होगा भैया cot 30 का? cot 30 का वैल्यू होता है √3। ये आंसर है। अच्छा और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो ना मेरा भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 330 डिग्रीज। कितना होगा? कैसे करेंगे भैया? देखो cos 330 करने का उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय 90n प्लस थीटा रूल में लिखो इसको। कैन आई राइट इट एज cos 360 माइनस 30? कोई दिक्कत है? यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 270 प्लस 60 कर सकते हो, कोई दिक्कत एक ही बात होगा। 360 माइनस 30 करते हैं इसको हम, तो क्या होगा भैया? अच्छा ऑब्जर्व करो, ये 330 कहां पर लाई कर रहा है? इट इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 90, 90, 180, 270, उसके बाद 360 इसमें आएगा था, 270 और 360 बीच में आएगा, 330 आएगा कहीं पर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर आता है तो क्या यहाँ पर क्या है? cos एंड sec पॉजिटिव है, cos ही वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। अच्छा तो मतलब ये भैया cos ही है। अच्छा 360 क्या भैया? कैन आई राइट 360 एज 90 इंटू 4 माइनस 30। देखो यहाँ पर 4 क्या है? इवन है, मतलब क्या है? नो चेंज, मीन्स व्हाट? नो चेंज। तो इफ देयर इज नो चेंज देन इट विल बी व्हाट? इट विल बी cos 30। अच्छा cos 30 भैया, cos 30 दिक्कत नहीं है, cos आज प्लस माइनस है, प्लस ही होगा भैया। cos 30 कितना होता है? ये मेरा आंसर है। This is the way to calculate the basic angle values. You can do any calculation angles for this. अच्छा ठीक, now we are dealing with negative arguments। मतलब भैया नेगेटिव आर्गुमेंट मतलब क्या नहीं? आर्गुमेंट मतलब वो झगड़ा वाला आर्गुमेंट नहीं। आर्गुमेंट का मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर हम टेक करें साइन ऑफ माइनस थीटा तो ये कैसे निकालेंगे? कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कैसे निकालेंगे? tan ऑफ माइनस थीटा ये कैसे निकालेंगे? अगर ये निकल में आ गया तो भैया ऑपोजिट निकल जाएगा, ये कैसे निकालेंगे? तो जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। लेकिन क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल। द रीजन इज बेसिकली, ऑब्जर्व करो, देखो भैया साइन ऑफ माइनस थीटा तो नेगेटिव एंगल का होता है। हमने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ा कि भैया अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कंसीडर करने लग गए, मतलब सपोज इट इज द ओरिजिन, तो अगर भैया यहाँ से हम इस तरह ना जाके इस डायरेक्शन में जाए, मतलब क्लॉकवाइज मूव करें। अच्छा तो ये माइनस थीटा ही नहीं एंगल 30, 45 इट कैन बी एनीथिंग, तो जो भी एंगल है भैया अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो कहां पर लाई करेगा? इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज, देन व्हेन इट विल बी लाइंग, तो भैया अगर 0 से 90 के बीच में आएगा तो ये टोटल दफा 90 है ना भैया, 2 ये जो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जो कौन सा या फिर 2 यहाँ से यहाँ तक जो एंटायर एक क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री है। मतलब अगर माइनस थीटा बोलेंगे तो ये 0 से नीचे आएगा, ये 0 है मतलब यहाँ से नीचे आएगा भैया,
मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा बाय डिफॉल्ट। कॉस क्या आएगा भैया? कॉस माइनस थीटा, क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पॉजिटिव आएगा बाय डिफॉल्ट, तो कॉस थीटा हो जाएगा। tan क्या आएगा? tan भी यहाँ पर किस केस, tan का भी ये घर नहीं है, ये भी tan का घर नहीं है, tan का घर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? नेगेटिव भी आएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज नेगेटिव आर्गुमेंट्स। नेगेटिव आर्गुमेंट्स हो गया। जैसे एग्जांपल देके बोल देते हैं, चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड देन डिस्कस इट। अच्छा लेट्स टेक सम एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। कैसे एग्जांपल लेंगे भैया? चलो बोलते हैं साइन माइनस 120 डिग्रीज कैसे निकालेंगे? तो साइन माइनस 120 मतलब क्या है? माइनस मतलब क्या है? देखो इसका एज इट इज तुम जिसको देखोगे माइनस थीटा, तो इसका हम पहले बोल रहे हैं कि ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस साइन 120 डिग्रीज। अच्छा तो यह साइन 120 कैसे करेंगे? जैसे हम पहले करते थे, कैसे करेंगे इसको लिखेंगे हम साइन 90 प्लस 30। ठीक, तो अगर ये साइन 90 प्लस 30 है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 मतलब क्या है? कॉस। और पॉजिटिव होगा क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या है? इनसाइड टर्म, ये बाहर वाला नेगेटिव नहीं है तो बाहर निकाल चुके हम इनसाइड टर्म, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बोले, सेकंड क्वाड्रेंट बोले। क्या हो गया? cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, मतलब ये आंसर हो जाएगा माइनस √3/2। चमका कि नहीं चमका? चमकना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन तो हम cos नहीं, चलो इजी देते हैं, tan माइनस 135 डिग्रीज। कैसा करेंगे भैया? माइनस 135, कोई दिक्कत वाला टर्म है ही नहीं, लिखते हुए बोलते हैं। चलो tan और माइनस थीटा क्या है? माइनस tan थीटा, मतलब tan माइनस बाहर जाएगा, ये हो जाएगा tan 135, मतलब लाइन 90 प्लस 45। tan 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा, मतलब अंदर और एक नेगेटिव आएगा। ठीक, अच्छा 90 मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan होता है, कॉट होता है, कॉट 45। अच्छा दोनों माइनस करना पॉजिटिव हो गया। अच्छा कॉट 45 कितना होता है भैया? 1 होता है, इसका आंसर हो गया 1। माइनस 1 नहीं 1, क्यों? देखो माइनस था और माइनस और बाय डिफॉल्ट आया, दोनों में मिलके +1 हो गया। ठीक, तो ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव आर्गुमेंट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ये क्या चीज है? तो अलग कुछ नहीं है, बेसिक थिंग है। क्या थिंग है भैया? देखो अगर हम बोलें कि भैया इस एक एंगल को हम a प्लस बी या फिर a माइनस बी में तोड़ सकते हैं, तो भैया साइन कॉस और tan के लिए अलग अलग फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो कैसे आएगा भैया? तो देखते हैं। तो साइन a प्लस बी जो होता है वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा तो भैया साइन a माइनस बी क्या होगा? साइन a माइनस बी ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस साइन कॉस a साइन b। अच्छा भैया कॉस के लिए क्या हो जाएगा? चलो बोलते हैं कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, और कॉस a माइनस बी ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। फिफ्थ क्या होगा भैया? tan a प्लस b, ये क्या होता है? tan a प्लस b हो जाएगा मेरा
tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B। अच्छा, सिक्स्थ वन क्या है? tan A माइनस बी। अच्छा, ये हो जाएगा मेरा tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। अच्छा, ये पूरा में जो 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 फॉर्मूला है कहाँ से आया? तो सबका इंडिविजुअल डेरिवेशन है जो कि मैथ्स में है, क्लास 11 मैथमेटिक्स में है। तो मेरे वो जो इस मोमेंट पे हम लोग के लिए वो जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। द ओनली थिंग इज वी रिक्वायर द फॉर्मूले एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूले। नाउ जस्ट ऑब्जर्व फॉर रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूले कैन गेट सम ट्रेंड। भैया ट्रेंड क्या? देखो देखो, जब साइन की बात है ना, जब सब में हम लोग डिस्कसिंग अबाउट साइन, साइन ए प्लस बी हो या माइनस बी कुछ भी हो, साइन की जब बात कर रहे हैं तो देखो भैया अगर ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो क्या बीच में प्लस आ रहा है, मतलब जो साइन है वो चेंज नहीं हो रहा। साइन मतलब SIN नहीं, SIGN साइन, जो सिंबल है ना, साइन है ना भैया, वो चेंज नहीं हो रहा। जहां पर अगर एडिटिव फंक्शन है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ही हो रहा है। अगर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। अच्छा, और देखो रिपीटेटिव फंक्शन नहीं है, मतलब क्या है, साइन ए प्लस बी में मेरा साइन ए और साइन बी नहीं है, साइन ए और उससे कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी है। अच्छा बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। अच्छा भैया, तो कॉस में क्या हो जा रहा है? देखो कॉस में क्या हो रहा है, कॉस में ना ऑपोजिट फंक्शन नहीं ले रहा है, कॉस अपना जो फंक्शन है उसी का अलग अलग पार्ट ले रहा है, ए और बी ले रहा है, लेकिन जो साइन है ये चेंज हो रहा है, मतलब जो सिंबल है यहाँ पर ए प्लस बी है, बीच में नेगेटिव आ जा रहा है अगर ए माइनस बी है तो देखो पॉजिटिव आ जा रहा है। यही मेन चीज है याद करने के लिए। टेन में भी सेम पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा भैया, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, नीचे में उल्टा हो जा रहा है, पॉजिटिव है नीचे में उल्टा आएगा, नेगेटिव है नीचे में उल्टा आएगा। यही ट्रेंड है याद करने के लिए, बाकी तुमको याद करना पड़ेगा कुछ भी करके, इट्स अप टू यू। ठीक, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सेम फॉर्मूले। भैया क्वेश्चंस कैसे लेंगे, चलो पहले तो बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। भैया हमने तो पहले पढ़ा था कि जो क्वेश्चंस कर रहे थे 90n प्लस थीटा रूल से, वो उससे हो जाएगा, तो ट्राई कर देखो होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर 75 है, तुम कैसे लाओगे तुम इसको? तो 90 माइनस 25 करोगे, 25 का वैल्यू तुमको पता नहीं है, सॉरी 90 माइनस 15 करोगे, सॉरी 90 माइनस 15 करोगे उसका वैल्यू तुमको पता नहीं है। तुम इसको 60 प्लस 15 करोगे वो भी तुमको पता नहीं है। अच्छा, तो 60 90 का वैल्यू आएगा नहीं। अच्छा, तुम इसको अगर बोलोगे कि भैया मैं इसको 90 का 180 करूंगा, वो भी नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर भैया 75 है मेरे पास, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरे पास साइन 45 प्लस 30 डिग्री, आपको दिक्कत है क्या? हाँ, यही सब चाचा हो गया कि इसको हम 90 प्लस माइनस सिर्फ में नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे भैया, इसको हम तोड़ देंगे। किसमें? टू वैल्यू, जो भी हमने जो 5 वैल्यू मैंने पढ़ा था, क्या क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, किसी भी जो उसका वैल्यू मुझे पता है, मतलब बोला ना कि जो 15 वैल्यूज मैंने पढ़ा था, 15 वैल्यूज में से कुछ भी करके 15 वैल्यू के आसपास ही आंसर आएगा। तो अगर 15 वैल्यू जब पता है तो बाकी हो जाएगा। हम तो अगर 45 30 में तोड़ दिया मैंने इसको, तो अगर तोड़ा तो क्या होगा, उसका ऐसा आंसर आएगा कि ये साइन ए प्लस के फॉर्मेट में है क्या? यस, इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ साइन ए प्लस बी। तो क्या करें भैया, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ये, साइन ए मतलब यस इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। अच्छा, सॉल्व कर लो भैया। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। अच्छा, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये कितना हो गया? ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम आ गया, क्या हो जाएगा भैया, 1 प्लस √3/2√2। इट इज माई आंसर, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम बोलते हैं कि cos 15 डिग्रीज, ये कैसे करेंगे? cos 15, तो ट्राई करो 5 4 3 2 1। चलो हम करते हैं, चलो cos 15 कैसे होगा भैया? तो cos 15 करने का, इसको पहले तोड़ो भैया। 15 डिग्री को कैसे तोड़ेंगे? देखो, इसको हम एडिटिव फंक्शन नहीं सब्ट्रैक्टिव फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लेता हूं cos
60 माइनस 45 का क्या 15 आ रहा है? हाँ, तो कर दो। ये क्या है? कॉस ए माइनस बी। ए है मेरा, बी है, तो कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सॉल्व कर दो। कॉस 60 कितना है? कॉस 60 इज 1/2। कॉस 40 कितना है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 40 1/√2। ये 1/2√2 प्लस √3/2√2। ऐड कर दो, कितना हो गया? सेम 1 प्लस √3/2√2। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया सॉल्व। चलो और एक क्वेश्चन देता होमवर्क के लिए, कर देते। चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। कर देना इसको। ठीक, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट इज डबल एंड हाफ एंगल फॉर्मूले। भैया बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना। हाँ, थोड़ा तो भैया फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री में है, देन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक ऑल द फॉर्मूलेज बेसिकली लर्नेबल, means you can retain all the formulas in this way which I have used to date myself. So let's proceed it. That is my double and half angles. मतलब देखो इजी चीज है क्या भैया? अगर मैं बोलूं तुमको कि साइन 2 थीटा, ये कैसे करेंगे? क्या हम बोल सकते हैं इज इट पॉसिबल राइट एज थीटा प्लस थीटा? अच्छा भैया थीटा प्लस थीटा मैंने बोला तो भैया यही ए है, यही मेरा बी है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। तो पुट कर दो इक्वेशन में। क्या इक्वेशन था मेरा? साइन ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। जस्ट देखो पहले वाला स्लाइड में फोटो था मेरे पास, वही था इक्वेशन था। तो क्या है भैया? ये तो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही मेरा फॉर्मूला है। मतलब साइन 2 थीटा is equals to 2 sin theta cos theta. नंबर 1 इक्वेशन। अच्छा सेकंड क्या भैया? सेकंड चाहिए भाई, चलो इसको बॉक्स कर लेते हैं इसको। सेकंड इक्वेशन क्या है? cos 2 थीटा। तो ये कैसे करेंगे? cos 2 थीटा उसका रूल है भैया, ये है मेरा cos, कुछ तुम भी ऐसे कर सकते हो इसको एकदम सेम टाइप पे, cos थीटा प्लस थीटा। cos a प्लस cos b, क्या रूल था भैया? cos a प्लस b का, ये था मेरा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। मतलब cos थीटा इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये भैया चीज? ये हो जाएगा मेरा 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिखो उल्टा की एक ही बात है। मतलब क्या है? यू कैन यूज इट दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा equals to 1. You can use any one, either of them. It will be 2 cos square theta minus 1. हो गया कि नहीं? एकदम होगा भैया। अच्छा लेकिन ऑल्सो अगर उल्टा कर दो ना, cos की जगह यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि भैया ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। मतलब cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है। क्या भैया? पहला वन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड वन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थर्ड वन 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड इट इज very important. These two formulae are one of the most important formulas of trigonometry which will be used in every part of the physics syllabus. It is basically starting from kinematics till our last modern physics courses. Everywhere it will be used, and also in mathematics for the calculus part. It is having a tremendous benefit. Okay. So the third one is my tan 2 theta.
क्या भाई tan थीटा क्या होगा, यही टाइम होगा tan, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज tan थीटा प्लस थीटा, tan a प्लस b थीटा प्लस थीटा पुट कर दो भैया, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया भैया। अच्छा, we got the 3 formulae। अच्छा, now ये मेरा डबल एंगल था, now this 3 by my double angle formula, now we are going to have the half angle formula। भैया हाफ एंगल कैसे होगा, तो हाफ एंगल का रूल देखो भैया, अगर मैं बोलूं कि cos थीटा बाई 2, ये कैसे cos थीटा बाई 2 नहीं, मतलब cos एंगल जो है एंगल का हाफ, ये कैसे करेंगे भैया, ये करने का उपाय वेरी सिंपल है। कैसे करेंगे भैया एंगल इसको, तो जस्ट जहां जहां तुम थीटा पुट करते हो वहां वहां थीटा बाई 2 पुट कर दोगे, तो आंसर जो आएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2। कैसे भैया ये आया कैसे, तो ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, मैं करके दिखाता हूं, लेट मी सॉल्व इट इन रफ एंड शो इट टू यू। भैया अगर cos थीटा बाई 2 बोल रहा हूं, तो थीटा बाई 2 cos 2 थीटा अगर मेरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो भैया cos 2 थीटा कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पर बोलूं मैं कि थीटा की जगह अगर मैं थीटा बाई 2 पुट कर दूं, तो क्या आएगा भैया, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये यहाँ पर अगर हाफ कर दिए, हाफ एंगल हुआ, ये भी हाफ होगा, मतलब 2 थीटा का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अच्छा, अगर भैया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 cos थीटा हो जा रहा है, तो मेरा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आएगा, ये आएगा मेरा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, स्क्वायर को हटा देंगे क्या हो जाएगा भैया, cos थीटा बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा बाई 2। वो तो मैंने लिखा यहाँ पर, चमका कि नहीं चमका, देखो कुछ नहीं, जो एंगल है ना थीटा, थीटा की जगह मैंने थीटा बाई 2 पुट कर दिया, थीटा बाई 2 पुट कर दिया, अगर मैंने थीटा बाई 2 पुट कर दिया क्या होगा भैया, ये भी हाफ हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, थीटा आएगा आंसर यहाँ पर, भाई मैंने क्या सॉल्व करके यहाँ जाएगा। यही टाइप भैया साइन थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ एंगल में साइन थीटा बाई 2, जस्ट यहाँ पर साइन थीटा जगह साइन थीटा बाई 2 पुट कर दोगे, ये कॉस के टर्म्स में आंसर आएगा, ये आएगा रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा बाई 2, दैट्स इट, और कुछ नहीं, जस्ट now take a screenshot of this, do some questions regarding this topic। कैसे क्वेश्चन भैया, पहला वाला, चलो साइन 106, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 106 डिग्री, कैसे करेंगे भैया, तो साइन 106 तो कुछ टर्म में आएगा नहीं, तो डबल हाफ में लगा के कोशिश करो, तो भैया अगर इसको हम बोलें कि 106 ये क्या है, इज इट बेसिकली इक्वल टू साइन 2 टाइम्स ऑफ 53 डिग्रीज, चलेगा क्या, अच्छा भैया साइन 53 मुझे पता है क्या, अच्छा भैया ये मेरा थीटा है, तो ये क्या साइन 2 थीटा का क्वेश्चन में आएगा, एकदम आ जाएगा, क्या क्वेश्चन होगा भैया, हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब भैया यहाँ पर देखो, मुझे पहले चीज में मुझे याद होना चाहिए कि अगर ये थीटा मेरा 53 डिग्रीज है, तो ये एंगल साइड मेरा 4 होगा, ये 3 होगा, ये मेरा 5 होगा, तो मेरा साइन 53 कितना आएगा, ये कितना आएगा 4/5 आएगा, और cos 53 मेरा कितना आएगा भैया 3/5 आएगा। ठीक, चलो लगा दो इक्वेशन यहाँ पर, तो थीटा अगर 53 है तो ये क्या होगा, हो जाएगा 2 साइन 53 इंटू कॉस 53, 4/5 इंटू यहाँ पर 3/5, तो क्या होगा भैया 2 इंटू 4 इज 8 इंटू 3 24, 24/25 ये मेरा वैल्यू आएगा। ठीक, अच्छा अलग क्वेश्चन लेते चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या लेंगे, हाँ चलो लेते हम साइन 74 डिग्री, ये कैसे करेंगे भैया, देखो ये क्या है मेरा वैल्यू 37 का ट्वाइस आ रहा है, एकदम चेक कर दो, दिस साइन 2 इंटू 37 डिग्रीज, नाउ 37 का वैल्यू कितना होता है भैया, यहाँ पे देखो साइन 37 कितना होगा, ये होगा 3/5, कॉस 37 कितना होगा 4/5, पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन में, 2 इंटू साइन 37 दैट इज 3/5 इंटू कॉस 37 इज 4/5, देखिए आंसर आएगा भैया, या ये भी 24/25। ठीक, अच्छा चलो और एक हाफ एंगल का क्वेश्चन लेते हैं, हाफ एंगल का कैसे लेंगे भैया, हाफ एंगल का क्वेश्चन चलो दिखाते हैं, चलो क्वेश्चन है मेरे पास
साइन 22.5, ये सॉल्व करो भैया। तो साइन 20.5 कैसे करेंगे? देखो 22.5 जो है 22.5 ये मेरा किसका हाफ हो रहा है? देखो तो ये 45 का हाफ हो रहा है। देखो ऑब्जर्व करके 45/2 कितना होता है भैया? 45/2 22.5, तो ये होगा ये चीज, ये होगा मेरा साइन 45/2। तो ये थीटा कितना है भैया मेरा यहाँ पर? थीटा आ रहा है मेरा 45 डिग्री। ये सुनो, इक्वेशन क्या था मेरा भैया? तो इक्वेशन था मेरा साइन θ/2 में रूट ओवर 1 माइनस कॉस θ/2। जस्ट पुट कर दो आंसर यहाँ पर, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। साइन θ/2 मतलब साइन 22.5 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस θ मतलब 45/2। कॉस कितना होता है? 1/√2। ये कितना होगा? हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos 45, that is basically 1/√2 होल बाई 2। ठीक, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वेलसीएम लेके कितना आएगा भैया? ये आ जाएगा मेरा रूट ओवर √2, हाँ आएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा रूट ओवर √2 माइनस 1/2√2। ठीक, ये मेरा आंसर है। तो डबल एंगल हाफ एंगल का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। चलो अब प्रोसीड करेंगे हम रेंज ऑफ फंक्शन और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करके लेक्चर हम खत्म करेंगे। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ फॉर द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहला बात क्या है भैया कि अगर मैं साइन का बोलूंगा, साइन का, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ दिस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, देखो भैया एक ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, कोई भी एक ट्रायंगल लो, कोई भी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए। तो भैया यहाँ पर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बोलूँ, इसको बेस बोलूँ, इसको हाइपोटेन्यूज बोलूँ, तो ऑब्जर्व करके देखना भैया कुछ भी हो जाए, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दैट इज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ऑब्जर्व देखो भैया इस ट्रायंगल में, वो तो छोड़ो, सबसे बड़ा साइड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज है। लेकिन यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज में डिनोमिनेटर में है, तो अगर सबसे बड़ा साइड में तो लार्जेस्ट वन इज ऑन द डिनोमिनेटर साइड, देन दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1। और मैक्स टू मैक्स परपेंडिकुलर अगर इक्वल भी हो जाए तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, सही तो यही ना भैया, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता कुछ भी करके, क्योंकि क्या होगा? परपेंडिकुलर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर का अगर ये थीटा 0 भी हो जाए, थीटा का 0 हो जाए मतलब क्या है? मतलब ये जो लाइन है ये एकदम ओवरलैप कर जाएगा इसके साथ। तो अगर ओवरलैप भी कर जाए ना भैया, तो भी देखो तो भी मेरा ये इक्वल टू 1 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाफ से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, इक्वल टू 1 होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, और अगर देखेंगे इसको मिनिमम वैल्यू कितना होगा भैया, तो मिनिमम वैल्यू भी -1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? देखो -1 से ज्यादा नहीं होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन लेके -1 बोलते हैं। इसकी साइन थीटा का रेंज है, वो मेरा रेंज बोलूं साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा का रेंज होगा भैया ये -1 से लेके +1 तक होता है। अच्छा, नंबर 1 है मेरा। अच्छा चलो नंबर 2 बोलते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा क्या होगा भैया? इट इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी देखो, यहाँ पे भी रेंज देखो, बेस भी कैन बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और भी लेस देन हाइपोटेन्यूज। तो क्या यहाँ पर रेंज क्या होगा इसका सब्सिक्वेंट रेंज? ये भी सेम -1 से लेके कॉस थीटा +1 तक होता है। अच्छा, तो साइन थीटा कॉस से पता चलेगा भैया टैन का। टैन का तो रेंज बहुत दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि टैन का अनडिफाइन होता है कभी कभी, तो 90 से पैरेलल चल जाता है। वो मेरा हम लोग के कोर्स में साइन और कॉस का ही है। तो अगर साइन और कॉस का लेके बोले तो भैया तो एक अलग टाइप का फंक्शन होता है जो स्पेशल फंक्शन बोलते हैं, जिसको हम फिर बेसिकली बहुत बार आएगा हमने क्वेश्चंस में कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये बहुत बार देखेंगे ये फंक्शन में, ऑप्टिक्स में भी देखेंगे, वे ऑप्टिक्स में, वेव्स में देखेंगे, सच में देखेंगे। तो a sin थीटा प्लस b cos, ऐसा प्रकार का फंक्शन है मेरे पास, a sin थीटा प्लस b cos, इसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो इसका जो रेंज होता है ना भैया, द रेंज ऑफ दिस इज बेसिकली फ्रॉम रूट ओवर माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, that is a sin theta plus b cos theta till positive value of root over a square plus b square, where a and b are the coefficients of sin and cos. Coefficients of sin and cos. Example लेके देखते हैं. So let me take an example. Example बोले कि y equals to -5
साइन थीटा प्लस 12 cos थीटा, इसका रेंज बोले तो इसका रेंज कैसे आएगा? तो रेंज ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट? इट विल बी रूट ओवर, देखो माइनस बोल रहे हैं, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब -5 का स्क्वायर मतलब 25 और 12 का स्क्वायर मतलब 144, 25 प्लस 144 से लेके यहां से लेके कितना तक भैया? पॉजिटिव दिस वैल्यू प्लस रूट ओवर 25 प्लस 144, ये कितना है भैया? 169 मतलब 13 होगा, मतलब इसका वैल्यू होगा फ्रॉम -13 टू +13। ठीक, चमक गया भैया, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चंस के लिए तो इस टाइप का रेंज हम निकाल सकते हैं। चलो अगर हम लास्ट टॉपिक्स करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, देन विल बी रैपिंग अप दिस लेक्चर। अच्छा, नो लास्ट टॉपिक इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो ये कैसे करते हैं ये चीज? देखो, इफ द कंडीशन इज इफ द थीटा मींस माय एंगल इज स्मॉलर देन 5 डिग्रीज, मतलब बहुत ही छोटा एंगल भैया, 5 डिग्री बहुत छोटा होता है, तो उसके इक्वल या sorry, if my angle theta is around 5 degrees, means smaller than 5 degree, or to say lesser than equal to 5, let's basically say like less than 5 degree, that is less than equal to 5 degree भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस रेंज में लाई कर रहा है भैया, इस रेंज में लाई कर रहा है, then the value of sin theta will approximately be equal to theta, the value of cos theta will approximately equal to 1, and the value of tan theta will approximately be equals to theta। अच्छा, यहाँ पर theta किस में आएगा? In all these cases, in not the in these two cases, the theta is in radians। यही बात है, theta किंतु theta must be in radians। If theta is in radians, then this must be satisfied। अच्छा, कैसे करते हैं? एग्जांपल देकर मुझे समझाइए ये हुआ है क्यों? मैं देखो साइन थीटा के क्यों बोल रहा हूँ, क्यों देखो साइन जो जीरो होता है ना, वो जीरो होता है, साइन जीरो इज जीरो। नो, साइन जीरो से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं भैया, तो जो एंगल है 0 to 90 इट इज इंक्रीजिंग, मींस इफ विद साइन एज थीटा राइजेस अप, साइन थीटा आल्सो राइजेस अप। भैया साइन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, देखो ना, अगर वैल्यू देखो ना, साइन जीरो कितना होता है? 0, 30 कितना है? 1/2, 45 कितना है? 1/√2। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन देखो ऑब्जर्व देखो, जब थीटा के साथ साथ साइन थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, तो अगर थीटा के साथ साथ साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो भैया जीरो से जो वैल्यू बढ़ेगा, जीरो से जो वैल्यू बढ़ेगा, तो 0 से 5 तक इंक्रीज होगा, लेकिन कितना इंक्रीज होगा? बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वली हो जाता है। अच्छा, तो देखो कॉस थीटा भैया, तो कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो होता है 1, तो या 1 के आस ही पास ही होगा ना वैल्यू, डिक्रीज होता है। देखो कॉस जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, +1 से वो -1 की तरफ जाता है, ठीक है, वो चीज मतलब इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भैया कॉस थीटा का डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखो ऑब्जर्व करके देखो भैया 1 के आसपास ही आएगा, 1 होगा, 0.99 होगा, 0.98 होगा, तो भैया 1 के आस ही पास ही आएगा ना, तो 99 हो, 98 हो, भैया अप्रोक्सीमेट 1, ठीक। और भैया tan से भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो भी इंक्रीज ही करता है, तो एक हो गया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम में भैया टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। चलो एग्जांपल लेते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्रीज। कैसे करना भैया? तो साइन 2 डिग्री वैल्यू आएगा ना भैया, वो 2 नहीं आएगा, वो 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 2 को पहले करना पड़ेगा रेडियंस में, तो भैया 2 डिग्रीज को कन्वर्ट कीजिए रेडियंस में। वो कैसे करें भैया? इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से। क्यों पाई 180 किया भैया? तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो अगर पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको और कुछ नहीं। तो कितना होगा भैया? ये हो गया मेरा पाई बाई 90 रेडियन। अच्छा, मतलब ये होगा मेरा साइन पाई बाई 90, इसका वैल्यू कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली, यही चीज था, यही चीज है, ये मेरा आंसर है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, साइन पाई कितना वैल्यू होगा?
भाई यहाँ पर पाई तो क्या बोले, पाई तो आपने बोल दिया कि सॉरी कुछ बोला नहीं आपने, तो हम बोलते हैं चलो पाई डिग्रीज, पाई डिग्रीज। तो यार पाई डिग्री कितना होता है, तो देखो भैया पाई यहाँ पर किंतु रेडियन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर पाई का मतलब रेडियंस नहीं है, यहाँ पर पाई का मतलब क्या है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 3.14, तो आपको 2 डेसिमल 3.14 है भैया। तो अगर 3.14 देखो तो 3.14 लेस देन 5 भी है, लेस देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये होगा मेरा साइन 3.14 डिग्रीज। अच्छा मतलब 3.14 को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, कैसे करना भैया, सेम थिंग कि अगर पाई डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा पाई इंटू पाई बाई 180, मतलब क्या है पाई स्क्वायर बाई 180। अच्छा अगर पाई स्क्वायर बाई 180 बोलेंगे भैया तो लिख दो यहाँ पर, ये होगा मेरा साइन पाई स्क्वायर बाई 180 रेडियंस, इसलिए वैल्यू कितना होगा भैया, ये अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल टू होगा पाई स्क्वायर बाई 180। अच्छा और एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, क्या इंटरेस्टिंग बात भैया, जो पाई स्क्वायर है ना उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, मतलब क्या है भैया, देखो ना 3.14 इंटू 3.14 जो भी आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 10 का इक्वल होता है, अप्रोक्स 10 होता है। तो हमें अगर पाई स्क्वायर जगह हम 10, क्योंकि अप्रोक्स ले ही रहे हैं ऑलरेडी, हम अप्रोक्स ले ही रहे हैं, तो अगर अप्रोक्स ले ही रहे हैं ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट तो उसको हम लिख सकते हैं क्या 10 बाई 180, मतलब 1/18, 1/18, 1/18, 1/18 एंड दिस इज माय आंसर। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है बेसिकली टू डिस्टिंग्विश द थिंग। क्या नोट पॉइंट है भैया, नोट पॉइंट है ऑलवेज थीटा को रेडियंस में लेना, किसी डिग्री में मत लेना, फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ओनली फॉर लेस देन 5 डिग्रीज, 5 डिग्री बोले तो कन्वर्ट कर दो, मतलब 5 पाई बाई 180 हो जाएगा चीज, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक यहाँ पर रैप्ड अप होता है, एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेंगे फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। अच्छा तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज बेसिकली अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 1.8 डिग्रीज, ऑब्जर्व करो इसको, इट इज 1.8 डिग्रीज, डिग्री दिया ठीक है, एट द आई। नाउ व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी सीन बाय एन आई प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अच्छा तो ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, सपोज दिस इज माय ह्यूमन आई, तो ये बोल रहा है कि एक डिस्टेंस की दूरी पर सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द आई, दिस इज बेसिकली हैविंग a distance 1 मीटर बोलते थे वो, नहीं 1 मीटर बोला है, डिस्टेंस इज 1 मीटर, मींस दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर्स, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर्स। नाउ 1 मीटर अपार्ट बोल रहा है कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 1.8 डिग्रीज, मतलब जो 1.8 डिग्री का एंगल बनाएगा तो मिनिमम ये हाइट कितना होगा, मिनिमम हाइट, ये मिनिमम हाइट अगर एच बोले ये मिनिमम हाइट कितना होगा, एन ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है इस दूरी पे 1 मीटर दूरी पे, तो 1 मीटर दूरी पे रखा ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है बोल रहा है 1.8 डिग्री, तो बोले ये मिनिमम हाइट कितना होगा टू मेक इट 1 मीटर दूर, 1 मीटर डिस्टेंस। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, चीज नहीं है, बेसिकली कंप्लीट द ट्रायंगल फर्स्ट, ह्यूमन आई के जैसा, कितना हो रहा है भैया ये एंगल, ये हो रहा है 1.8 डिग्रीज। नाउ इफ आई से इट इज 1.8 डिग्रीज देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन टू गेट द वैल्यू, का बहुत छोटा वैल्यू है, यस 1.8 डिग्रीज इज लेस देन 5 डिग्रीज, मींस वी कैन यूज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है भैया, तो 1.8 डिग्री कितना होता है, कन्वर्ट कर दो भैया, तो 1.8 डिग्री मतलब 1.8 इंटू पाई बाई 180, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पाई बाई 100 रेडियंस। तो अगर देखो ऑब्जर्व करके देखो हाइट मुझे पूछा गया है, तो अगर हाइट पूछा गया है कि मुझे हाइट पूछा गया तो मैं किस फंक्शन का यूज करूंगा, किस साइन फंक्शन में, साइन कॉस टैन, देखो तो ये अगर हाइट बोला गया है, बेस दिया गया है, तो अगर मैं tan थीटा यूज करूँ, अगर मैं tan थीटा यूज करूँ कितना हो जाएगा, ये tan 1.8 डिग्री कितना होगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस तो जाएगा मेरा हाइट अपॉन 1 मीटर्स। अच्छा ये कितना हो जाएगा tan 1.8 मतलब क्या है, इट इज पाई बाय 100, इट इज पाई बाय 100, इट इज इक्वल्स टू h बाई 1 मीटर्स, मतलब h कितना है, इट इज tan पाई बाय 100। नाउ tan पाई बाय 100 मतलब इट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इट इज equals to the value that is pi by 100 in meters,
मीटर में क्यों? Everything is in SI unit. Radian is SI unit. This is my answer. Then also write it as, so if you wish you can also modify it like a little bit. It is basically the height will be approximately equals to pi 3.14 into 10 to the power minus 2 meters. Now this marks the end of this lecture. Take a screenshot of this video now. Okay. The next lecture will be on coordinate geometry, algebra, and the lecture 3, that is third lecture or the last lecture of this chapter, will be on calculus. So all the very best for your studies.